Assalamu alaikum, dear students. Today I'll be giving a lecture on electromagnetic field theory. The course code is EE221. Or the term electromagnetic field. Basically, electromagnetic field is the combination of electrical and magnetic assessments. So when we have these two kinds of field, one is known as the electrical field and another one is the magnetic field. These two fields can combine in any type of machine, in any type of charge body. So we can say that in that specific equipment, in that specific machine, there is some kind of electromagnetic field. So basically electromagnetic fields are also known as EMF or EM field, and it is a physical field that produced by the movement of electrical charge object. So the effect of these charge can be varied with respect to the field. For example, if we can make the electrical and magnetic field within some vicinity like air, so the electric and magnetic field response will be different as compared to if we can make it with the some responsive measurement regarding in water or in the surface of the earth. So it is one of the four fundamental forces of nature. The other are gravitation and the weak interaction and strong interaction. This field can be viewed as the combination of electrical field and a magnetic field. As I already discussed, the electric field is produced by stationary charges, while the magnetic field is always produced by the movement of charges. So it means that the electric field is dependent upon something that is known as voltage, while the magnetic field is dependent upon something like current. So here I'll be discussing some basics differences about the electrical field and the magnetic field. So electric field arises from the voltage, while the magnetic field arises from the flow of current. Their strength is measured in volt per meter, while the other end their strength is measured in ampere per meter. An electric field can be present even when a device is switched off, while on the other hand, an electric field a magnetic field cannot be produced without the movement of charges. So magnetic field exists as soon as the device is switched on and a current flows. So if we can see that the field distance, so हम अगर देखते हैं कि जितना हम distance बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होती है, तो उसी तरह यहाँ पे हमारे पास फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो भी वीक होगी, आइदर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड और द मैग्नेटिक फील्ड. अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे काम करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर. सो आइए डिस्कस करते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे इसको एप्लीकेबल बना सकते हैं और इसके एप्लीकेशंस के ऊपर कुछ बात करते हैं. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स मैग्नेट्स डज ऑल द थिंग्स दैट आर ऑर्डिनरी मैग्नेट्स कैन डू, बट यू कैन स्विच देम ऑन एंड ऑफ. सो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के यूजेस के बारे में. तो हम इसको डिफरेंट डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, लाइक स्विचेस के अंदर हम यूज़ करते हैं, स्पीकर्स के अंदर. अभी एक और एप्लीकेशन आपके सामने है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की एक एग्जांपल है, जिसमें आपको एक स्क्रैप पिक करती हुई एक क्रेन नज़र आ रही है. ये क्रेन बेसिकली इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से जो है जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं जो कि स्क्रैप होता है हमारे पास आयरन का, तो ये उस तमाम मटेरियल्स को जो है वो अट्रैक्ट करती है और पिकिंग के लिए यूज़ किया जाता है. इसके अलावा डिफरेंट रिलेज के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं. किसी भी सर्किट की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं. इनके नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है वो किसी भी सर्किट की एम्पलीफिकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए जो है वो बहुत मदद देते हैं. इसलिए हम इनको जो है ना डिफरेंट कॉइल्स के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं. अब वेदर इट्स AC कॉइल और इट्स DC कॉइल, हम उसके अंदर इसको यूज़ करते हैं. ये आपके सामने दो एग्जांपल्स भी जो हैं मौजूद हैं. अब हम बात करते हैं कि कोई फील्ड जो है वो किस तरह एक्चुअली वर्क करती है. सो अभी हमारे पास
ये पहली फिगर है जिसमें तीन जो है एरोज आपको नज़र आ रहे हैं, एक करंट के लिए, एक मोशन के लिए, एक फील्ड के लिए। सो इससे हमें ये पता चलता है कि जब फील्ड की जो हम बात करते हैं कि फील्ड जब बनेगी तो उसके लिए ज़रूरी है कि देयर मस्ट बी सम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस की मूवमेंट होगी तो हम कहेंगे कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ करंट जो है वो उसके अंदर फ्लो हो रहा है। तो दो तरह से हम फील्ड्स को देखते हैं, एक हम देखते हैं कि जब फील्ड हमारी रिवर्स चल रही होती है और तब करंट हमारा जो है वो सेम डायरेक्शन में चलता है, जबकि दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं कि जो हमारी फील्ड की डायरेक्शन होती है और करंट की डायरेक्शन होती है वो दोनों सेम होती है। सो आज हम पहली जो सेकंड फिगर को देखते हैं जिसमें मोशन इन रिवर्सेस। सो इसमें आप देख सकते हैं कि मोशन भी रिवर्स हो रहा है, करंट भी रिवर्स पोजीशन में जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड, जबकि दूसरी फिगर में आप देख रहे हैं कि आपकी फील्ड जो है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू द मोशन एंड करंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द करंट के अंदर जो चार्जेस मूव हैं।